alkaline earth metals. इसका कल हमने जब लास्ट क्लास थी तो वी टॉक्ड अबाउट द alkaline earth metals, उनके नाम, उनकी configuration and उनके size. Now today I'll be talking about the ionization energy. We know we have covered this question in the alkali metals also, that I1, right? Ionization energy of alkaline earth metal, right? This is more than ionization energy of alkali metals. Okay, why is it so? Because it has got a stable electronic configuration. It has got stable electronic configuration, that is NS2. Okay, while it has got a configuration NS1, always removal of electron having a stable configuration requires a large amount of energy. Okay, then I'll make you read. बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए है जब आप रिमूव करना चाहते हैं इलेक्ट्रॉन्स को एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन से, चाहे वो नोबल गैसेस हैं, चाहे वो एल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं, और भी बहुत सारे कंपाउंड्स में ये बिहेवियर शो होता है. नाउ आई एम गोइंग टू टेक वन थिंग, आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज the first ionization energy. This question I did in the previous alkali metals. IE1 of alkaline earth metal is greater than IE1 of alkali metals. Okay, but IE2, that is the second ionization energy of alkaline earth metal, it is less than IE2 of alkali metal. So how to show it? Let us take the two examples. Let us talk about magnesium, that is alkaline earth metal, which has the configuration that is 2, 8. इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, ऐसे नहीं क्लियर होगा. Now we will have the configuration that is neon 10, ठीक है, and this is 3s2. Let us talk about sodium. It has got neon 10, ठीक है, and it has got the configuration that is 3s1, ठीक है. अब देखिए, this is a stable configuration. ये जो है ये stable configuration है. Removal of electron require very high energy, ठीक है, very high energy, because this is a stable electronic configuration. इसलिए IE1 जो है वो काफी ज्यादा होगी, and magnesium would be getting converted into magnesium plus 1 with the configuration that is neon 10 and 3s1. This is unstable. This is quite unstable. Okay, now less energy is required. Less energy is required because from stable it has been converted into unstable form, and ultimately when it will be losing one electron, it will be again becoming stable. तो obviously ये एनर्जी काफी कम होगी, ये एनर्जी काफी ज्यादा होगी, क्योंकि देखिए स्टेबल से आप किसी चीज को अनस्टेबल कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी. इसी तरह से अगर आपने एक अनस्टेबल चीज को स्टेबल में कन्वर्ट करना है तो बहुत कम एनर्जी लगानी पड़ेगी. नाउ यू जस्ट सी हियर फॉर सोडियम, this is having a configuration 3s1. This is quite unstable configuration. तो यहाँ पे less ionization energy चाहिए, यहाँ पे less ionization energy चाहिए, and it will get converted into sodium plus 1 with the configuration that is neon 10. ठीक है, तो इसकी configuration जो है वो ये हो जाएगी, that is neon 10. So this is a stable configuration. Now the energy is very, very large. The second ionization energy is very, very large, that sodium never exists as sodium plus 2. तो सोडियम कभी भी सोडियम प्लस 2 की फॉर्म में स्टेबल नहीं हो सकता, ठीक है, और वो एग्जिस्ट भी नहीं कर सकता. Is this point clear with everyone? Is this ionization energy concept is okay? Yes, ma'am. Okay, then I'll be moving about the hydration energy. This we have talked so many times. The larger is the size, the less is the hydration energy. Hydration energy की जब हम बात करते हैं, delta H of hydration या hydration enthalpy या hydration energy कुछ भी, bigger is the size of the ion,
bigger is the size of ion, less is the hydration energy. If I'm writing this, it means it is the hydration enthalpy. देखिए जैसे बेरिलियम +2 है, देन मैग्नीशियम +2 है, देन कैल्शियम +2 है, ठीक है, फिर स्ट्रॉन्शियम +2 है, फिर बेरियम +2 है। तो क्या हुआ कि इधर की साइड जब हम जाते हैं, डाउन द ग्रुप जब हम जाते हैं, तो साइज increases and delta H of hydration decreases. ठीक है जी, this decreases. Now the next point that I'll be talking about is the oxidation state. Oxidation state मतलब इनके ऊपर usually क्या चार्ज आता है? They form di-positive cation. ठीक है, this show an oxidation state of +2. ठीक है, या हम कह सकते हैं कि it shows +2 oxidation state. Why it shows the +2 oxidation state? Because when it forms divalent cation, it forms a stable configuration. Divalent cation, it forms a stable configuration. एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनती है। देखिए अभी हमने जैसे पिछले, मैं आपको पिछले वाला दिखा रही हूँ, ये वाली कॉन्फ़िगरेशन। अब देखिए जब सोडियम मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया और ये मैग्नीशियम 2+ बना, तो इट फॉर्म्स अ स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। इट फॉर्म्स अ कॉन्फ़िगरेशन व्हिच इज इक्वल टू द नोबल गैस। हर चीज जो है वो स्टेबल होना चाहती है, wants to come to the noble gas configuration. So after it loses the 2 electron, it forms a stable configuration like this. Is it okay? Now they are all electropositive. ठीक है, एक और पॉइंट कवर करने लगे, they are electropositive in nature. ठीक है, because metals हैं तो obviously electrons lose करेंगे। जब electrons lose करेंगे तो they will acquire a positive charge. अब एक चीज मैं लिखने लगी हूँ that they are less electropositive. ये कितने लोग इस चीज के लिए एग्री करेंगे? less electropositive than alkaline metals. ये बात ठीक है? Is this point clear? देखिए जब आप पीरियड में मूव करते हैं, यहाँ पे आता है ग्रुप 1, ठीक है, और यहाँ पे आता है ग्रुप 2, ठीक है। ग्रुप 1 is your alkaline metals and group 2 is your alkaline earth metals, ठीक है जी। अब क्या है, जब आप ग्रुप में मूव करते हैं तो साइज क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है, साइज डिक्रीजेस, ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, सो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिकम डिफिकल्ट। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है इट बिकम्स डिफिकल्ट, ठीक है ये बात? इज इट ओके विद एवरीवन? यस मैम। ठीक है, तो इसलिए जो एल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं दे आर लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव, उनके लिए इलेक्ट्रॉन लूज करना मुश्किल है, जिसकी वजह से दे आर लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव एज देन दैट ऑफ द एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, एल्कलाइन मेटल्स। देन वन मोर थिंग वी हैव टू सी, दैट इज एज वी मूव डाउन द ग्रुप, जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं, व्हेन वी मूव डाउन द ग्रुप, क्या लगता है क्या होगा? क्या लगता है? When we move down the group, electropositive character बढ़ेगा कि कम होएगा? Increase होएगा. The electropositive character will increase. Yes, it increases. क्योंकि जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, वैसे वैसे साइज जो है वो बढ़ता चला जा रहा है, और जैसे जैसे साइज जो है वो बढ़ता चला जा रहा है, वैसे वैसे आयनाइजेशन एनर्जी कम होती चली जा रही है और लूज करना इलेक्ट्रॉन का इजी होता चला जा रहा है। Now I'll be talking about density. अब मेरे को ये बताइए कि एल्कलाई मेटल डेंसर होंगे कि एल्कलाइन अर्थ मेटल डेंसर होंगे? जल्दी से। मैं यहाँ पे आपने यहाँ पे एरो डालना है, ग्रेटर देन और स्मॉलर देन का, ठीक है, ये जो ब्लॉक है। अब मैं लिख रही हूँ यहाँ पे एल्कलाई मेटल्स एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अब बताइए कौन से ज्यादा डेंसर होंगे? सोच के, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। जल्दी से। मैम अर्थ मेटल्स। Alkaline earth metals, बिल्कुल। Why it is so? Because they have
small size, small size alkaline base, alkaline earth metal, they have smaller size than alkaline metal, because of which the um, they are closely packed. ठीक है, अगर ये closely packed है in a lattice, लैटिस होता है जालदार स्ट्रक्चर, जाल होता है ना जैसे वैसे, they are closely packed in the lattice, density is equal to what? Density is equal to mass per unit volume. अगर ये closely packed है लैटिस के अंदर, तो देखिए क्या हो गया, जो वॉल्यूम है that decreases and density increases, therefore volume decreases and density increases. Moreover आप देखिए जो मास है, ठीक है, मास ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल जो है दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन द मास ऑफ एल्कलाइन मेटल्स. एल्कलाइन मेटल से तो एल्कलाइन अर्थ मेटल्स का मास जो है वो बड़ा ही, ठीक है. Yes, Is it okay? ma'am. Then we will be talking about nature of bonds. ये किस तरह के bonds बनाएंगे, जल्दी बोलिए. What kind of bonds will they form? They will be forming ionic bonds. Why? Because they are all metals. They have low ionization energy. Because of low ionization energy, the loss of electron is easy. ठीक है, तो यहाँ पे लो आयनाइजेशन एनर्जी होने के चक्कर में इनके लिए लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है दैट इज क्वाइट इजी. देन वील बी टॉकिंग अबाउट द मेल्टिंग पॉइंट एंड द बॉइलिंग पॉइंट. ठीक है, दे हैव गॉट हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स. मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्यों ऐसे होगा? Why I am saying that they have got high melting and boiling points? Why is it so? आयनिक बॉन्ड्स है तो मेल्टिंग पॉइंट बॉन्ड तो ज्यादा वो भी आयनिक बॉन्ड है, वो भी आयनिक बॉन्ड है. अगर मैं ऐसे लिखूं एल्कलाइन मेटल्स और यहाँ पे एक ब्लॉक बना रहे हैं एल्कलाइन मेटल्स, इन दोनों में से किसका ग्रेटर देन होगा? एल्कलाइन मेटल्स का, किसका? Alkaline earth metals. एल्कलाइन अर्थ मेटल्स का, बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज and close packing. Close packing, the interactions are very strong. Interactions are very strong. Interactions किस तरह की होंगी इनके अंदर? मेटेलिक बॉन्ड. ठीक है, जितना छोटा साइज होता है उतना ही मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है. तो इंटरैक्शंस आर वेरी स्ट्रॉन्ग, जिसकी वजह से they can easily form the they have the higher melting and boiling point. अच्छा, अब हम बात करने लगे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो बहुत बार स्कूल एग्जाम्स में आता है, दैट इज अ फ्लेम कलरेशन. ये जब स्कूल खुलेंगे हम लैब्स में जाएंगे तो ये सारे टेस्ट करते हैं. दीज आर द फ्लेम टेस्ट. बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, ये पूरे के पूरे एल्कलाइन अर्थ मेटल्स. मैम, देखिए, हाँ जी हाँ जी बोलिए. मैम जो ऊपर आपने मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट लिखा है मैम, वो उधर ये भी लिख सकते हैं कि दे आर हाई डेंसिटी, दे मोर हाँ, one and the डेंसिटी. same thing, small size, close packing, high density, सारा कुछ लिख सकते हैं. हाँ जी. ठीक है, अब ये देखिए, ये जो बेरिलियम और मैग्नीशियम है, they do not show color to the flame. The question will come, why they will not show impart color to the flame. उससे पहले I'll be talking about these only. This will be imparting the brick red color to the flame. ठीक है, एकदम से गाढ़ा सा लाल कलर. This will form crimson red color to the flame. Crimson red मतलब बहुत ही shiny red color. This will be giving you an apple green color to the flame. Why does it happen? Why the colors are so few of the compounds are imparting the color, few are not imparting the color. अब देखिए, अब जब down the group चले गए तो size बड़ा हो गया है, तो जिनका बड़ा size है they are imparting the color to the flame, others are not. I am moving to the next board now. Now what happens? Why color is imparted? Why color is imparted to the flame? ये बात अब हम करने लगे. Imparted to the flame. अब आपने क्या किया? I'll just show you कि ये लैब में करते कैसे. एक वॉच ग्लास ली, उसके ऊपर आपने HCl डाला, ठीक है, और उसके ऊपर ये HCl और साथ में कैल्शियम सॉल्ट की पेस्ट बना दो. ठीक है, this is HCl and calcium salt paste. Now the question arises, why HCl? It is because
जो ये वाले मेटल्स हैं इनके क्लोराइड्स वॉलेटाइल हैं। वॉलेटाइल का मतलब होता है वो वेपर बन के उड़ जाते हैं। अब क्या किया, ये पेस्ट वाली जो ये आपकी प्लेटिनम वायर थी, ठीक है। अब ये जो प्लेटिनम वायर थी ना, इसको फ्लेम के अंदर ले गए, ठीक है। प्लेटिनम वायर को हम फ्लेम के अंदर ले गए। जैसे ही हम फ्लेम के अंदर ले गए और ये क्या कहते हैं कैल्शियम है, तो उस फ्लेम का रेड कलर आ जाएगा, जिससे हमें पता लगेगा कि कैल्शियम सॉल्ट को हमने इंसर्ट कर दिया है इस कैल्शियम फ्लेम इसके अंदर। इज इट ओके विद एवरीवन? इज इट ओके? नाउ व्हाई डज द कलर अपीयर? देखिए क्या होता है, जब एक एटम को आप हीट नहीं कर रहे, उसके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो अपनी ग्राउंड स्टेट में पड़े होते हैं, ठीक है। जैसे ही आप उसको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, एनर्जी इज प्रोवाइडेड इन द फॉर्म ऑफ हीट। आप उसको बंजन फ्लेम में लेके गए, प्रोवाइडेड इन फॉर्म ऑफ हीट। जैसे ही आप उसको बंसन फ्लेम के अंदर लेके गए, व्हाट विल हैपन, द इलेक्ट्रॉन विल जंप टू द एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जो थे वो एक्साइटेड स्टेट के अंदर जंप कर गए। Now the electrons cannot survive in the excited state. The electrons have to come back to the ground state. When the electron come back to the ground state, energy is emitted. Energy is emitted in the form of radiations. In the form of radiations, वो radiations अगर visible range of spectrum में lie करेंगी तो हमें कलर दिखेगा, नहीं तो हमें कलर नहीं दिखेगा। Now the question arises, अच्छा भाई क्यों नहीं दिखा? बेरिलियम ने और मैग्नीशियम ने, इन्होंने कलर क्यों नहीं इम्पार्ट किया? इन्होंने कलर इसलिए नहीं इम्पार्ट किया, ये देखिए मैं बेरिलियम का बना रही हूँ, ये न्यूक्लियस है और ये रहा 2 इलेक्ट्रॉन इधर हैं और 2 इलेक्ट्रॉन इधर हैं। अब साइज छोटा होने की वजह से न्यूक्लियस ने इन इलेक्ट्रॉन्स को इतना स्ट्रांगली पकड़ के रखा है, जिसकी वजह से जब आप हीट प्रोवाइड करते हैं, द इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट इन अ पोजीशन टू जंप टू द हायर एनर्जी स्टेट। इलेक्ट्रॉन्स हायर एनर्जी स्टेट में जंप नहीं कर सकते, ठीक है। जिसकी वजह से they do not impart any color to the flame. The same thing happens for magnesium and the same thing happens for this sodium, magnesium. Is this point clear with everyone? Is it okay? Yes, ma'am. ये कलर वाला फिर से बता दो। आपने क्या किया, आपको कहा गया बेटा चेक करो ये कैल्शियम का सॉल्ट है कि आपके पास स्ट्रोंशियम का सॉल्ट है या फिर आपके पास क्या बेरियम का सॉल्ट है। तो कैसे करते हैं फ्लेम टेस्ट लेबोरेटरीज में? कैसे करते हैं, आप लोग वॉच ग्लास लेके उसके ऊपर HCl डालते हैं डाइल्यूट, और उसके अंदर सॉल्ट डाल देते हैं, जिसका भी सॉल्ट है, कैल्शियम का या बेरियम का या स्ट्रोंशियम का, जिसका भी सॉल्ट है उसकी पेस्ट डाल देते हैं, उसकी पेस्ट बना लेते हैं। फिर उस पेस्ट को प्लैटिनम वायर से लगा के यू इंसर्ट इट इनटू द फ्लेम। वो फ्लेम का कलर, जैसे मैंने कहा मेरा कैल्शियम का सॉल्ट था, तो मेरे फ्लेम का कलर जो था वो रेड हो गया, ठीक है। यू कैन सी द एजेस ऑफ द फ्लेम रेड, बीच बीच में कहीं रेड दिखना शुरू हो जाता है। तो क्यों हुआ ये कलर रेड? हमने कहा कि साइज बड़ा था कैल्शियम का, उसके इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, जब तक आप पेस्ट बना रहे थे उसके इलेक्ट्रॉन्स ग्राउंड स्टेट में बैठे हुए थे, वेलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन अपने घर में बैठे हुए थे। जैसे ही आपने एनर्जी प्रोवाइड करी इन द फॉर्म ऑफ हीट, द इलेक्ट्रॉन विल जंप टू द हायर एनर्जी स्टेट, दैट इज द एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट में वो बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है। क्या आप रोज मोटिवेटेड होते हो? आर यू मोटिवेटेड एवरी डे? फॉर सम ऑफ द टाइम यू आर मोटिवेटेड इन द डे एंड सम ऑफ द टाइम यू आर नॉट। तो इलेक्ट्रॉन्स जो थे वो एक्साइटेड स्टेट में आए, जब वो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में आए तो वो बिल्कुल भी स्टेबल नहीं थे। The electron has to come back to the ground state. उनको वापस आना है। जब उनको वापस आना है तो जो एनर्जी वो खा पी के ऊपर चढ़े हैं, वो एनर्जी उनको रिलीज करनी है। That energy is released in the form of radiations. अगर तो वो रेडिएशंस बेटा विजिबल रीजन ऑफ स्पेक्ट्रम में फॉल करेंगी तो वो हमें कलर्स दिखेंगे, ठीक है। अब बेरिलियम का क्या बात थी? बेरिलियम, I'll be moving for beryllium now. Let us talk about beryllium separately and magnesium separately. Beryllium and magnesium. अब देखिए बेरिलियम और मैग्नीशियम का क्या था? They have got small size. Small size होने की वजह से ये देखिए बेरिलियम का ये न्यूक्लियस है, ये 2 इलेक्ट्रॉन है एंड ये 2 इलेक्ट्रॉन्स। न्यूक्लियस का होल्ड इन इलेक्ट्रॉन्स पे इतना ज्यादा है कि अगर आप इसको बंसन बर्नर में ले भी जाएंगे, इसको एनर्जी प्रोवाइड कर भी देंगे इन द फॉर्म ऑफ हीट,
the heat will not allow these electrons to move to the higher energy level because the nucleus has hold these electrons very, very strongly. Is it okay? Yes, ma'am. Now we'll be talking Yes, about this. मैम हाँ जी बोलिए. मैम हम कैल्शियम सॉल्ट पेस्ट के साथ HCl क्यों डालते हैं? क्योंकि जो कैल्शियम क्लोराइड बन जाता है, कैल्शियम क्लोराइड इज वॉलेटाइल इन नेचर. ठीक है, वॉलेटाइल मतलब वो वेपर में कन्वर्ट हो सकता है. जब वो वेपर स्टेट में आएंगे तभी इलेक्ट्रॉन्स एटम्स एक दूसरे से दूर होंगे और तभी एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे. इसलिए बिकॉज द क्लोराइड्स ऑफ कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम एंड बेरियम दे आर वॉलेटाइल इन नेचर. ठीक है, then we'll be talking about reducing character. They have a tendency to lose electron. ठीक है, tendency to lose electron. इलेक्ट्रॉन को लूज करना मतलब ऑक्सीडेशन. दैट इज मेटल जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा है. एनीथिंग विच इज लूजिंग द electron that is going in under oxidation. So as they can undergo oxidation, so they are good reducing agent. They are good reducing agent. ठीक है, because they can lose electron. Why they can lose electron? Because of low ionization energy. अब जब आप down the group कर जाएंगे, this is very important. जब आप down the group जाएंगे क्या लगता है? Reducing character बढ़ेगा कि कम होएगा? Increases. Yes, reducing character will increase because जब आप down the group जा रहे हैं तो ionization energy जो है वो काफी कम होती चली जा रही है. जब ionization energy काफी कम होती चली जा रही है तो obviously what we may call जो आपकी reducing character जो है वो बढ़ता चला जा रहा है. Is it okay? Is it fine with everyone? Yes, ma'am. Yes, I made you ma'am. read some of the pages. Let me cover 1 to more pages. Now I'll be talking about the reactivity towards water. इसमें ना कल हमने किया था कि जो फर्स्ट एलिमेंट है ग्रुप का वो काफी ढीठ है, उसकी प्रॉपर्टीज जो है वो काफी हटके होती है. अब देखिए इसमें रिएक्टिविटी टुवर्ड्स वाटर हम करते हैं. जो बेरिलियम है इट डज नॉट रिएक्ट विद वाटर. react with water. अभी आपने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पढ़ा नहीं है, पर इसका रीजन यही है कि it has got negative value of electrode potential because of the least negative electrode potential value. Least negative, इसको ऐसे याद करना पड़ेगा, least negative electrode potential value. ठीक है, बेरिलियम जो है वो नहीं रिएक्ट करता. अब देखिए मैग्नीशियम also has negative electrode potential value. ठीक है, but it is less negative than beryllium. Beryllium से कम negative है. Therefore magnesium reacts with the steam. ये steam के साथ react करता है and it forms magnesium oxide with the liberation of this. अगर क्वेश्चन इस तरह से हो that is magnesium with cold water, so there will be no reaction at all. कोई reaction नहीं होना. Only it will react with the steam. जब ये एक बार steam के साथ react करा तो ये जो magnesium oxide था, ठीक है, तो this forms a protective layer. ये जैसे मेरे पास magnesium का vessel था तो इसके surface के ऊपर ध्यान से देखेंगे, इसके सरफेस के ऊपर एक मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर डिपॉजिट हो जाती है जो नीचे वाले मैग्नीशियम को सब प्रोटेक्ट कर देती है. तो इट फॉर्म्स, आई बी राइटिंग हियर, दिस इज अ प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ, म्यूट पे रखिए अपने आप को. दिस इज अ प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड. ठीक है, तो ये प्रोटेक्टिव लेयर बना देती है. अब जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप मूव करते हैं तो रिएक्टिविटी जो है वो बढ़नी शुरू हो जाती है. देन वील बी टॉकिंग अबाउट रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन. अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज करने लगे हैं, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन. देखिए जी, बेरिलियम को छोड़ के, एक्सेप्ट बेरिलियम, ठीक है, बाकी सारे मेटल्स जो हैं वो हाइड्रोजन के साथ डायरेक्टली हीट करने पे रिएक्ट करेंगे
and it will lead you to the formation of metal hydrides, right? Except beryllium. Metal hydrides which will be ionic in nature. Now the question will come, how beryllium hydride is prepared. Discuss the structure of beryllium hydride. जो चीज नहीं हो रही, the questions are usually from that topic. Beryllium hydride जब आपने बनाना है तो आप beryllium chloride लें और lithium aluminium hydride लें. This is one of the strongest reducing agent. ये काफी strong reducing agent है. So what will be happening? It will lead you to the formation of, that is beryllium hydride. It will form lithium chloride and it will form aluminium chloride. Now the question arises, that is the structure of beryllium hydride. ठीक है, अब मैं नेक्स्ट पेज पे आ रही हूँ because I want to show you the structure differently. अब देखिए जी, ये है आपका beryllium hydride. This is 2-center 2-electron bond. ठीक है, beryllium के valence shell में I am coming to the previous board now once again. Just I am coming to this board. You know that beryllium has got 2 electrons in the valence shell. This is a hydrogen with 1 electron. This is hydrogen with 1 electron. So it will be forming a single bond here. It will be forming a single bond there. So it is BEH and BEH. क्या सब agree करते हैं structure को? Do you all agree with this structure? Yes, ma'am. Very quickly. अच्छा, कह सकती हूँ this is 2-center 2-electron bond. Can I say this thing? 2-center 2-electron bond. What does it mean? यहाँ पे 2 सेंटर हैं और 2 इलेक्ट्रॉन से मिलके ये बॉन्ड बना है. यहाँ पे 2 सेंटर हैं. This and this are the 2 center and this is a 2-center electron bond. 2-center 2-electron bond, क्योंकि ये बॉन्ड जो है ये 2 इलेक्ट्रॉन से मिलके बना है. बोलिए, can we say? Can we say? पक्का? क्योंकि अभी मैंने इसको चेंज कर देना है. किसी को कोई डाउट है तो मुझसे पूछ लो. हम दोबारा बताना है. ये देखिए, ये बेरिलियम है. इसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन था, इसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन था. ये दोनों ओवरलैप करे और एक सिंगल बॉन्ड बना इस तरह से. ठीक है, अब क्या हुआ, यहाँ पे भी एक सिंगल बॉन्ड बना. मैंने ये वाला हिस्सा लिया. मैंने कहा ये वाले बॉन्ड को मैंने क्या किया, 2 सेंटर, दैट इज बेरिलियम और हाइड्रोजन सेंटर है और उन सेंटर के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड बना हुआ है. इज इट ओके? Is it fine? Yes, ma'am. Everyone? Yes, I'm coming once again here. I'm coming here. I'm writing this thing once again. This is 2-center 2-electron bond. ठीक है? But it has a polymeric structure. अरे भाई, अब polymeric structure कैसे बनेगा? अब क्या हुआ? देखिए जरा ध्यान से देखेंगे. Beryllium एंड हाइड्रोजन, ये वाला जो बॉन्ड था, ये वाले जो 2 इलेक्ट्रॉन थे, ये इन तीनों के बीच में फैले. इसके बीच में, इसके बीच में और इसके बीच में. आई एम राइटिंग हियर, दिस इज H ओवर पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर है. मैं एक मिनट इस तरह से बना रही हूँ, ध्यान से देखेंगे. दिस बॉन्ड गॉट स्कैटर्ड, शैल बी मेक, दिस बॉन्ड गॉट स्कैटर्ड बिटवीन द हाइड्रोजन एंड बिटवीन द बेरिलियम, 2 बेरिलियम. ये बॉन्ड जो था ये किसके बीच में फैला, इसके बीच में, इसके बीच में और इसके बीच में. ठीक है, इज इट क्लियर विद एवरीवन? इज इट ओके? मैम Yes, दोबारा ma'am. बता दो. पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर है, मतलब इन दोनों ने आपस में जुड़ना है. अगर ध्यान से देखें तो बेरिलियम वाला ये BeH2 तो ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है. BeH2 इज एन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड. इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड क्यों है? क्योंकि जो बेरिलियम है उसके वैलेंस शेल, उसके शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, 2 इधर और 2 इधर. ठीक है, इज इट ओके? इतनी बात समझ में आई है? Yes, ma'am. अच्छा, I am coming to the next board now. Just see here, अब क्या हुआ है. बेरिलियम है एक इस तरह से, बेरिलियम हाइड्राइड, और दिस इज अनदर बेरिलियम हाइड्राइड. दे हैव टू गेट लिंक, और बहुत सारे बेरिलियम हाइड्राइड, इस तरह से बहुत सारे बेरिलियम हाइड्राइड पड़ेंगे.
अब क्या है, इन सबको आपस में जुड़ना है, पेज कस से तो जुड़ नहीं सकता। तो क्या होगा, ये जो बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड, ये इन तीनों के बीच में फैलेगा, इसके बीच में, इसके बीच में, इसके बीच में। और ये वाला जो बॉन्ड है ये भी फैलेगा। आई एम चेंजिंग द कलर, इसके बीच में, इसके बीच में और इसके बीच में, एंड दिस विल कंटिन्यू लाइक दिस। जस्ट सी, आई एम गोइंग टू मेक beryllium, I am going to make hydrogen. This is another beryllium. This is another hydrogen, and this one, the next hydrogen, I am making the next hydrogen जिसके साथ था, ये एक hydrogen, ये फिर से beryllium के साथ, फिर इस beryllium का hydrogen, इस beryllium के साथ, and so on and so on, and similarly इधर हम color change कर देते हैं। यहाँ पे जो hydrogen था, ठीक है, वो किसी और beryllium के साथ link होगा, और इस बेरिलियम का हाइड्रोजन इसके साथ लिंक होगा, और ऐसे ये स्ट्रक्चर जो है वो चलता जाएगा। इज इट फाइन विद एवरीवन? इज इट ओके? यस मैम। इज इट ओके? इसमें हाँ बोलिए बोलिए बोलिए, if anybody has any doubt। ये जो दो इलेक्ट्रॉन थे, that was two center two electron bond, ये दो इलेक्ट्रॉन्स फैल गए किनके बीच में? These two electrons got scattered here, here and here। This was the hydrogen जिसको मैंने स्टार किया है, it got scattered here, here and here। ठीक है, दो इलेक्ट्रॉन्स कितने एटम्स में फैले? Quickly, two atoms got scattered in two electrons got scattered in how many atoms? 3 atoms। जो मैंने कितने एटम स्टार करके रखे हैं? 3 एटम से स्टार करें। तो ये दो इलेक्ट्रॉन जो थे, यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन थे भाई, वो दो इलेक्ट्रॉन इसको होल्ड कर रहे हैं, इसको होल्ड कर रहे हैं, इसको होल्ड कर रहे हैं। ये देखिए, आई एम मेकिंग इट हियर, द टू इलेक्ट्रॉन्स आर होल्डिंग हाउ मेनी एटम्स नाउ? 3 atoms। So can I say this is 2 electron 3 center bond? कह सकते हैं, दो इलेक्ट्रॉन ने 3 एटम्स को पकड़ लिया। दिस इज 2 electron 3 center bond। This bond is also called as banana bond, and this compound is electron deficient। ठीक है, ये बात क्लियर हुई है सबको? ये स्ट्रक्चर जो है ये एग्जाम्स में आएगा। I am sharing my screen. I'll make you read this many pages and then I'll be moving further. I'll be just start with alkaline earth metals। जल्दी से पढ़ें यहाँ से। Shall I drag the next page? Yes, ma'am. चलिए,
पढ़ लिया है कि पढ़ रहे हैं? मैम इलेक्ट्रोपॉजिटिव वाला समझा दो एक बार। कौन सा? इलेक्ट्रोपॉजिटिव वाला। Electropositive, anything which is losing an electron, ठीक है, anything which is losing an electron that is acquiring a positive charge, so it is electropositive. ठीक है, इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद पॉजिटिव चार्ज आना, that is electropositive. They are all metals, so they will be losing the electron and they will be all electropositive. ठीक है, that is what is meant by electropositive. चलिए नेक्स्ट पेज पे, shall we move to the next page? Reactions on the screen itself. Just see these reactions. Now you see reactivity towards the halogen. ये जितने भी members हैं, ये जितने भी alkali metals हैं, they will be all reacting with the halogens on heating except the beryllium to form the metal hydrides. Now beryllium halide, beryllium chloride can be made by these two methods, these two reactions you should memorize. Okay? Now you just see that is a reactivity towards air. The very important question that will come in the exam, the first point, why beryllium and magnesium do not react with oxygen? क्योंकि बेरिलियम और मैग्नीशियम जो है इनका रिएक्शन बहुत स्लो रिएक्शन होता है, क्योंकि ये अपने सरफेस के ऊपर एक ऑक्साइड की लेयर बना लेते हैं. जैसे अभी आई वाज शोइंग यू दैट मैग्नीशियम जब स्टील से रिएक्ट करता है तो अपने ऊपर ये ऑक्साइड की लेयर बना लेता है, विच इज प्रोटेक्टिव इन नेचर. ठीक है, तो फर्दर मैग्नीशियम को एक्सपोज नहीं होने देता. इट फॉर्म अ प्रोटेक्टिव लेयर ऑन इट्स सरफेस बिकॉज ऑफ व्हिच द रिएक्टिविटी इज वेरी लार्ज. अब बेरिलियम और मैग्नीशियम जो, बेरिलियम जो है, this is the metal which reacts with the nitrogen to form a covalent nitride. Can you see? Can you see? Shall I zoom? Shall I zoom or is it okay? Is it fine? Fine, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Now, very important question which I have written, that is the tendency to form complexes. Mila? Tendency to form complexes. बेरिलियम और मैग्नीशियम ऐसे complexes हैं, ऐसे elements हैं जिनकी tendency है बहुत ज़्यादा complex बनाने की. दो reason है, क्योंकि इनका size बहुत छोटा है और इनके ऊपर charge density काफ़ी ज़्यादा है. जितना छोटा साइज होगा, जितनी चार्ज डेंसिटी होगी, उतना ही कॉम्प्लेक्स बनाने की टेंडेंसी ज्यादा होगी. Is it okay? Is it okay? Then solution in liquid ammonia, it is the same, that it produces the ammoniated electron. The electron can jump to the higher energy state. When it comes back to the ground state, it emits the energy in the form of radiations. That is why the liquid ammonia जो है, solutions of alkaline earth metals in liquid ammonia are always bright blue in color. ये सारे metals हैं, हमें पता है जब ये सारे metals react करते हैं acid के साथ, तो they all liberate the hydrogen gas. ठीक है, is this page clear with everyone? Is this page clear with everyone? Yes, ma'am. I am sharing my another screen now. Something very important about the solubility. चलिए
just see, I'll be talking about the oxides and hydroxide. I'll be talking about oxides and hydroxides. ठीक है, अब देखिए मेटल के जो ऑक्साइड्स हैं ये कैसे प्रिपेयर होते हैं. हाउ द मेटल ऑक्साइड्स आर प्रिपेयर्ड. मेटल इज मेड टू रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड इज हीटेड एंड इट लीड्स यू टू द फॉर्मेशन ऑफ मेटल ऑक्साइड. या फिर हम मेटल का कार्बोनेट ले लेते हैं, उसको हीट करते हैं, इट लीड्स यू टू द फॉर्मेशन ऑफ मेटल ऑक्साइड एंड देयर इज अ लिबरेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. बेरिलियम ऑक्साइड को छोड़ के all metal oxides have NaCl type structure, except beryllium oxide. So this could be an MCQ. Which of the following oxide does not have a rock salt like structure? NaCl type structure is rock salt like structure. ठीक है. So this could be this. मैंने आपकी पता नहीं ग्रुप में एक अपडेट की है, अपडेशन की नहीं. दिस ईयर द CBSE हैज प्लान्ड 35 मार्क्स ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड अबाउट 35 मार्क्स ऑफ सब्जेक्टिव पेपर. जो 35 मार्क्स ऑफ ऑब्जेक्टिव पेपर रहेगा उसमें काफी पैटर्न्स रहेंगे. जैसे यू विल बी गिवन अ स्टैंजा एंड यू विल बी आस्क्ड टू what we may call give the answers to that. जब next term I'll start making you practicing like this. I'll start sending you the assignments like this. ठीक है जी. अब क्या हुआ, बेरिलियम ऑक्साइड इज लाइक दिस. अब हाइड्रोक्साइड्स कैसे बनेंगे? जो कैल्शियम के जब मेटल को आप पानी से रिएक्ट करते हैं तो दिस विल बी फॉर्मिंग मेटल हाइड्रोक्साइड एंड देयर विल बी लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस. दिस इज 2 here. Then metal oxide when react with the water, it will be forming the metal hydroxide. This is how the oxides and hydroxides are formed. No question will be asked except for this MCQ. The question that will be asked in the exam, now you just see this question that will be asked in exam, that is a basic character. एक चीज हम सब लोग जानते हैं that OH negative ion is a small size anion. ये चीज हम सब लोग जानते हैं. The question that will come in the exam is a basic character of alkali earth metal hydroxides. इनका कैसे basic character जो है वो vary करता है. देखिए, you have got beryllium hydroxide, right? Then we have magnesium hydroxide, then we have calcium hydroxide, then we have what we may call strontium hydroxide, barium hydroxide. What do you feel? How the basic character will be increase or decrease? क्या लगता है down the group? The basic character will increase. Why it increase? Because the size of the cation is increasing, and hydroxide ion is a small size ion. ठीक है, and it is a small size anion because of which it will be not alloying. ठीक है, क्योंकि ये ठीक है, ये एक छोटे साइज का आयन है जिसकी वजह से ये व्हाट वी मे कॉल, ये छोटे साइज का आयन है जिसकी वजह से ये बड़े साइज के केटायन को स्टेबल नहीं कर सकता. तो ये जो बॉन्ड है दिस इज अ वीक बॉन्ड रादर. ठीक है, दिस वुड बी द वीक बॉन्ड. सो अल्टीमेटली यहाँ पे ये बॉन्ड जो है ये जल्दी टूट जाएगा, या हम कह सकते हैं डाउन द ग्रुप. डाउन द ग्रुप क्या हुआ? द आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस. आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो डिक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से मेटल और हाइड्रोक्साइड की बॉन्ड क्लीवेज जो है दैट बिकम्स इजी. बॉन्ड क्लीवेज बिकम्स इजी. ठीक है, जितनी जल्दी बॉन्ड टूटेगा उतनी जल्दी OH नेगेटिव आयन रिलीज होगा, और जितनी जल्दी OH नेगेटिव आयन रिलीज होगा उतना ही बेसिक कैरेक्टर ज्यादा होगा. इज इट ओके? नो मैम. जब आप किसको नहीं पता लगा? नहीं मैम, पता नहीं लगा मैम. अच्छा बेटा, आपको मैं रिमूव कर देती हूँ क्योंकि आप तो इस ग्रुप के हैं ही नहीं. चलिए, नाउ यू सी रेस्ट. एनी डाउट टू एनीबडी?
एनी डाउट टू एनीबडी? जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप आ रहे हैं वैसे वैसे क्या हो रहा है कि आपका जो क्या कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो कम होती चली जा रही है, जिसकी वजह से मेटल हाइड्रोक्साइड बॉन्ड टूट रहा है। जितनी जल्दी ये बॉन्ड टूट रहा है उतनी जल्दी OH नेगेटिव आयन रिलीज हो रहा है, और जितनी जल्दी OH नेगेटिव आयन रिलीज हो रहा है उतना ही बेसिक कैरेक्टर जो है वो ज्यादा है। इज इट फाइन विद एवरीवन? Yes, ma'am. ओके, यस मैम। then we have then we'll be talking about sulfates and we'll be talking about carbonates. ठीक है, अब एक बात सब जानते हैं कि सल्फेट आयन एंड कार्बोनेट आयन आर बिग साइज एनायंस। ये बिग साइज एनायंस हैं and can stabilize the big size cation. बिग साइज cation, क्या सब एग्री करते हैं इस चीज के लिए? ये बात हम पहले भी कह चुके हैं, क्या हम एग्री करते हैं? ठीक है, अब मैं इनकी सॉल्युबिलिटी की बात कर रही हूँ, कैसे ये बनते हैं। दिस आई टेक आफ्टरवर्ड्स, फर्स्ट आई बी टॉकिंग अबाउट देयर सॉल्युबिलिटी। नाउ यू सी आई हैव गॉट बेरिलियम सल्फेट, ठीक है, देन वी हैव मैग्नीशियम सल्फेट, देन वी हैव कैल्शियम सल्फेट, देन वी हैव स्ट्रोंशियम सल्फेट, एंड देन वी हैव बेरियम सल्फेट। आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है लैटिस एनर्जी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप? ये बात कितने लोग एग्री करते हैं? कितने लोग एग्री करते हैं इस चीज के लिए? लैटिस एनर्जी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, ठीक है ये बात? Yes, ये ma'am. देखिए कि एनायन बड़ा था, केटायन बड़ा होता गया नीचे, जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जाते गए, जैसे जैसे केटायन बड़ा होता गया वैसे वैसे वो एनायन को स्टेबलाइज करता गया। तो बेरियम सल्फेट इज क्वाइट स्टेबल एज कंपेयर टू बेरिलियम सल्फेट। अब देखिए जब मैं डाउन द ग्रुप जा रही हूँ, डेल्टा H ऑफ हाइड्रेशन, दैट इज हाइड्रेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस, कह सकते हैं ये बात? हाइड्रेशन energy decreases because the size of the ion increases, decreases because the size of ion increases। ठीक है ये बात? Yes, ma'am. ठीक है ये बात? तो can Yes, we ma'am. say one thing, therefore on moving down the group, on moving down the group, ठीक है, the group, the solubility of sulfates will decrease, the solubility of sulfate will decrease। बोलिए ये बात ठीक है? Is this point okay? एक बार Yes, ध्यान ma'am. से पढ़, all of you just read this। Any doubt to anybody in this? Any doubt to anybody in this? चलें आगे। दो नंबर डिक्रीज की होगी। क्या कह रहे हैं? क्या पूछ रहे हैं बेटा? सॉल्युबिलिटी डिक्रीज की होगी। क्योंकि सॉल्युबिलिटी तो तभी होनी है जब हाइड्रेशन एनर्जी, दैट इज एनर्जी रिलीज्ड, इज मोर देन द लैटिस एनर्जी, दैट इज एनर्जी रिक्वायर्ड। यहाँ पे लैटिस एनर्जी इंक्रीज हो रही है। एनी सब्सटेंस सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी तभी होगी, ये हम हमेशा कहते हैं, जब हाइड्रेशन एनर्जी, दैट इज एनर्जी रिलीज्ड, ठीक है, दिस इज ग्रेटर देन लैटिस एनर्जी, दैट इज एनर्जी रिक्वायर्ड, लैटिस एनर्जी। अब यहाँ पे क्या है, लैटिस एनर्जी जो है वो हाइड्रेशन एनर्जी से बढ़ गई है, तो सॉल्युबिलिटी जो है वो कम हो जाएगी। ठीक है, ओके मैम। चले आगे। Yes, ma'am. चलिए नेक्स्ट आई विल बी टॉकिंग अबाउट द कार्बोनेट्स। आई विल बी टॉकिंग अबाउट कार्बोनेट। नाउ यू ऑल नो दैट कार्बोनेट जो है दैट इज अ बिग साइज cation, दिस इज अ बिग साइज anion, is a big size anion, ठीक है, obviously it will be stabilizing the big size cation। अब देखिए बेरिलियम कार्बोनेट, ठीक है, then I have magnesium carbonate, calcium carbonate, strontium carbonate and barium carbonate। देखिए जब आप डाउन द ग्रुप आए क्या लगता है, लैटिस एनर्जी इंक्रीजेस,
लैटिस एनर्जी इंक्रीजेस, ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप आते गए वैसे वैसे चीजें जो थे वो स्टेबल होती चली गई, वो स्टेबल होती चली गई, ठीक है, वो स्टेबल होती चली गई और उनको तोड़ना मुश्किल होता चला गया, जिसकी वजह से लैटिस एनर्जी जो थी वो बढ़ती चली गई। अब कैन वी से द हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीजेस, एनर्जी डिक्रीजेस लिख सकते हैं, क्योंकि साइज बड़ा होता चला गया तो वो कम हाइड्रेट होते चले गए एंड हाइड्रेशन एनर्जी कम होती चली गई। अब यहाँ लिख रही हूँ एनी सब्सटेंस एनी कंपाउंड इज सॉल्युबल, इज सॉल्युबल, ये ध्यान से देखेंगे, ओनली इफ hydration energy, that is energy released, hydration energy, that is energy released, is greater than lattice energy. This is energy required. Lattice energy is that energy which is required to break the bonds. Hydration energy is energy released when an ion is surrounded by the water unit. अब आप ध्यान से देखें कार्बोनेट के लिए हाइड्रेशन एनर्जी जो है वो डिक्रीज हो रही है डाउन द ग्रुप और हाइड्रेशन एनर्जी इंक्रीज हो रही है, तो क्या ये चीज को कंक्लूड कर सकते हैं, दस द सॉल्युबिलिटी of alkaline earth metal carbonates, right, decreases down the group, ठीक है, the question will come either on the carbonates or it will come from the sulfate. Why does the solubility decreases, why does the solubility why the basic character increases, ठीक है, I'm sharing some of the pages, just go through that. I'm going to share. मैम आज वाले नोट शेयर कर देना ग्रुप में। कर दी हूँ मैं, they are already there. ये जो आप अभी एक्सप्लेनेशन थोड़ी थोड़ी करा रहे हो वो भी कर देना। वो नहीं हो सकती है, वो वाइट स्क्रीन है, वो नहीं पॉसिबल है।